sometimes we delete and our brain use less data. Sometimes we extract some data from out of the data. Okay? That is part of data science. So extract gold and uranium during exploration from mines. Okay? This is also part of data science. Extract the essence of life from a sands and deserts. This is also data science. Deal with the bad data from your mind, organization and country. Remember, do not hack data, good or bad, because data is not for hacking. What do we do with data? Nowadays, we do so many solutions, so many problems are solved. What is the best way to use data? You have to think over it. What do you do with data once you have it? You also think about that. And also, what is the data and why do we? Okay. So these are simple about the data because they would help in the data science. Now, after that, what is really the model of data science? How we can understand data science? As I just mentioned you input something in the computer. What you find some output because computer is programming it. Based on your information, based on your problem, it will program that and then you output. But suppose that again you input and output combined together, after getting output, then you start machine learning. As I mentioned now machine learns how to make output. Okay? Because you already given the output which is created by the computer. Now again using same as a part of that computer, it means computer knows it. Yeah, how to look. That is called. Once you combine input output, you get a model of a program. Now which way you would like to use the program? For what kind of application you would like to use the program? This becomes a model of program. So you can create computer models. Know what means model? Model means some behavior. In daily life there is a modeling. Some behavior people appreciate it. But one behavior is component so many data put together. Okay? And which is also liked by the people, which is useful in the society. So once becomes a machine learning, machine understand it, you can make or you can create model, then next you can create products. So data scientist's job is generally includes these phases. Somebody might ask you what is then data science performs or does something. This is data extraction and manipulation. Okay? Extraction means so many data, you find useful data for your problem. What is your problem? Accordingly you can find. And then extract those data. Statistical analysis, you can find simple average, logical regression, so many things. Data visualization, because now we have software, we can visualize what activities are going on. Modeling, machine learning, because you can understand also how modeling can be created, how machine learning could be created with the help of the data science. And also, once you find the model, you can deploy it, you can use it for your future problems. Now, we start with after this discussion. Am I running fast? Do you understand it? Yes, sir. So, types of data science. We classify data science into these parts. One is start from, for example, text mining. You know mining? You create a mining of text. You can select particular feature according to your problem. You can classify it. You can create regression. And you can make cluster also. In cluster, one cluster has component. ये जितने भी आपने देखे हैं सब देख रहे हैं ना, ये सब डाटा साइंस के पार्ट्स है. Sir, from the back side, some students are requesting, can we have Hindi Miss language also?
Now, yeah. So, let us discuss the types of data science which I last slide I just demonstrated. Just जैसा कि आपने देखा last slide में, how we can elaborate, कैसे हम उनको proper रूप से जो है वो explain कर सकते हैं. This is the description, this is the algorithm, this is the example. You know what is description? आप जानते हैं description का मतलब इसको describe करना है. और algorithm क्या मतलब? कंप्यूटर साइंस वाले जानते हैं, आईटी वाले जानते हैं, what is algorithm? मैं सिंपल रूप में, आप तो वैसे जानते हैं जो कंप्यूटर साइंस वाले, सिंपल रूप में इस बताया जाए कि जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं, यू वेक अप इन द मॉर्निंग, और आपने सोचा, दिमाग में आपने एल्गोरिथम बनाई कि मुझे दिन में ये काम करने हैं, तो पहले मैं क्या क्या काम करूं, दूसरा कौन सा करूं ताकि मेरी डिस्टेंस सॉल्व हो. पहले मैं बैंक जाऊं, पहले मैं बाजार जाऊं, पहले मैं कॉलेज जाऊं. तो आपने लिखा बाजार डैश मार्केट या जो भी बैंक डैश स्कूल या कॉलेज, ये सब डैश डैश का क्या है, दिस बिकम्स योर दैट डे पर्टिकुलर एल्गोरिथम. उस दिन की एल्गोरिथम. आई बात समझ एल्गोरिथम? Yes, sir. तो अब ये एल्गोरिथम इसलिए जरूरी है, इट सेव्स टाइम, इट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड इन द ब्रीफ. आप शॉर्ट में समझने की इसमें ताकत है और आपको याद भी रखना आसान है. इसी तरह कंप्यूटर के लिए भी हम एल्गोरिथम बनाते हैं. आप समझें, तो कंप्यूटर में इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्राम, तो कंप्यूटर को भी आप ऐसे समझाइए कि हमारी एल्गोरिथम ये है. तो मैं पूरा रिसर्च नहीं करूँगा. तो ये क्या है कि ये बताया गया है कि क्लासिफिकेशन मतलब क्या है, रिग्रेशन का मतलब क्या है, एनोमली का डिटेक्शन क्या है. इसी तो इसमें हमने बताया है कंप्लीटली, आई डेमोन्स्ट्रेटेड दैट व्हाट इज द classification, what is aggregation, what is anomaly detection, time series, clustering. These are the types of the data science nowadays. This is the classification of data science according to the task. हम कौन सा काम करना चाहते हैं उसके आधार पर डाटा साइंस का क्या क्या है, इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण जिसको हम कहते हैं. Again, once you know all these things, एक बार आपने ये समझ लिया तो आपके दिमाग में ये आएगा कि आखिर हम डाटा साइंस के एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है. प्रोसेस समझते हैं? प्रोसेस को हम कैसे, प्रोसेस का मतलब क्या है? आप एक्टिविटी जानते हैं, व्हाट इज एक्टिविटी? कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज आर नॉन एज प्रोसेस. कई एक्टिविटी एक साथ लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, मैनी डिफरेंट टास्क कम टुगेदर टू कंप्लीट ए डाटा साइंस प्रोजेक्ट. एक प्रोजेक्ट के लिए बहुत सी बातें होंगी, कई तरह के प्रोग्रामिंग होंगे, कई तरह की मशीन लर्निंग होगी, कई तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होगा. ए डाटा साइंटिस्ट शुड बी फैमिलियर विद मोस्ट बट डज नॉट नीड टू बी एन एक्सपर्ट इन ऑल. कुछ तो समझना पड़ेगा. अब ये समझना है कि आप डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए क्या समझना जरूरी है, लेकिन कुछ समझना जरूरी है, अभी हम ये कहते हैं. लेकिन सभी, हर आदमी सब समझ नहीं सकता. नॉट एवरीबडी अंडरस्टैंड एवरीथिंग बिकॉज इट इज ह्यूज, बहुत बड़ा मामला है ये. एंड सम फ्रॉम अदर फील्ड सच एज कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बिजनेस, हर फील्ड में हम क्या एप्लीकेशन लेते हैं इस पर डिपेंड करता है कि हमारी डाटा साइंस. जैसे आज के ज़माने में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम डाटा साइंस में यूज करते हैं, वन इज कॉल्ड another is called SQL. Sometimes of the familiar language, most familiar language being used in the industry. Yeah. Now, very important part is that we can collect the data from instrument, or in the olden time we also used to have magnetometer in particularly physics lab. अब मैग्नेटोमीटर जैसे होता है, आप कहीं कहीं डाटा उसको कलेक्ट करते हैं, बट आज के ज़माने में दिस बिकम्स वेरी ओल्ड. वी नीड कंप्यूटर, वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू एग्जीक्यूट इट.
There are our nowadays 250 programming languages in the world. कितनी है? 250. इसमें क्या है कि जो पाइथन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. And this Python has 70,000 libraries around the globe. And 8.2 million users worldwide. आज पाइथन को यूज कर रहे हैं, जो आगे जाके इससे काम आएगी. दूसरा है पाइथन अलाउज फॉर इंटीग्रेशन विद सो मेनी अदर लैंग्वेज. क्या मतलब इसका? आप कंप्यूटर साइंस वाले जानते हैं. अगर आप कंप्यूटर साइंस से नहीं आप हताश मत होइए, क्योंकि ये सबका पार्ट है. एक एसक्यूएल लैंग्वेज होती है, टेंसर फ्लो होता है, और उनके साथ भी इसकी लाइब्रेरी मिलती है. यू कैन आल्सो इंटीग्रेट मीन्स यू कैन मिक्स टुगेदर ऑल दोज थिंग्स. Now, basic knowledge of Python helps in speaking the computing frameworks such as Apache Spark, famous for data engineering. तो और इसका एडवांस वर्जन है जो हम यूज़ करते हैं अपाचे के साथ, जो कंप्यूटर साइंस की बात, इसलिए मैं इसकी वाला अभी एलोबरेट नहीं करूँगा. Now you understand much more. Data can be got from many sources. आप manufacturing industry, so many data. You have social media, government, instrumentation, corporate, internet of things, so many things are to it. All are giving large number of data. सभी से बहुत large amount में आपको डाटा. इतने नंबर ऑफ डाटास को आप कैसे कलेक्ट करें और कैसे समझें? कभी आपने सोचा है, हम वेदर देखते हैं, वेदर आता है और आप पिन पॉइंट से न्यूज़ में समझा देता है कि यहाँ बरसात होगी, यहाँ नहीं होगी, यहाँ ऐसे होगी, यहाँ ऐसे भी. पर आपने सोचा है कि अगर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का जो मैप है उसमें कितना डेटा है? उसमें मिलियंस ऑफ डेटा है. उस डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए हमको स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत है, और जो डेटा साइंस के पार्ट है. तो ये जो मेट्रोलॉजी में इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन, उतनी लार्ज नंबर ऑफ डाटा होता है, किसी भी फिगर में आप चले जाइए जो इस तरह के फिगर है, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, अब पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज करते हैं. नाउ बेसिक्स ऑफ डाटा साइंस प्रोसेस. डाटा एक्सप्लोरेशन एंड डाटा वैल्यूएशन बीइंग यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम. ऐसा नहीं कि हम आज से शुरू कर रहे हैं, पहले इसका नाम डाटा साइंस नहीं था, पहले हम यूज करते थे. कहने का मतलब ये है. और ये कंप्यूटर साइंस के, आईटी के, या और ये बिजनेस के, स्टेटिस्टिक्स के लोग जानते हैं कि कई तरह की प्रोसेस होती है. जैसे डिसीजन रूल इंट्रोडक्शन के सो मैनी इंफॉर्मेशन था जो हम पहले से यूज़ कर रहे हैं, ये नई बात नहीं है. इसी तरह का है जो कॉमन एप्लीकेशन जैसे यूज़ होती है. एप्लीकेशन आप समझते हैं जिसको, जैसे आप ऐप यूज़ करते हैं, इनसे मिला के जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जैसे टेक्स्ट माइनिंग में सब यूज़ होता है. टेक्स्ट माइनिंग समझते हैं? आपको जो टेक्स्ट मिलते हैं उसकी भी माइनिंग क्रिएट कर सकते हैं. टेक्स्ट माइनिंग उसका ऑलरेडी आपको एक ऐसी लाइब्रेरी मिल जाएंगी कि उसमें सब टेक्स्ट ऑटोमेटिक है, जो भी आप चाहें उसको सेलेक्ट कर सकते हैं. टाइम सीरीज फोरकास्टिंग है, ये भी वेदर में यूज़ होता है. एनोमली डिटेक्शन, फीचर सिलेक्शन, ये सब क्या इनसे मिलके इस तरह की कॉमन एप्लीकेशन उपयोगिता इसकी निकलती है. नाउ अब आप डाटा साइंस को और आगे ले जाएंगे, पुश इट लिटिल मोर. नाउ व्हाट इज इट? डाटा साइंस मींस you can say statistics. So this is plus statistics plus data science over here. This all together we keep putting together. So we can say this is all plus data processing plus data landing plus scientific inquiry plus visualization, all those together. And then we want to know why, where, what, how to do. This is data science. Okay. I think मैं समझता हूँ थोड़ा और एडवांस हम बढ़े हैं डाटा साइंस की डेफिनेशन पर. Now, finally, what is data science? Data science is what the data science scientist does. This is the indirect definition of data science. Less circular but a tiny bit more helpful. Less circular way. हाँ, कभी सर्कुलर होता है. सर्कुलर मतलब यह है कि हम एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम लौट आते हैं, लेकिन ऐसी बात भी है, लेकिन लेस सर्कुलर as compared to other programming languages. Data science is the technology of handling and extracting value from data. Now, which kind of data you would like to extract? That data
which can match your requirement, which can fit your requirement, and which can set in your environment. And that type of data you would like to extract. And you also, sometimes you make narrow also. You want to make narrow. In brief, आप कभी आप एक बड़ा पैराग्राफ लिखा आपने और उसका आप सारांश 2-3 लाइन लिखना चाहते हैं, तो उसमें मेन डाटा निकाल के उस डाटा से बता सकते हैं कि हमारा मतलब ये था। इसी तरह फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग ऑन ए बिग डाटा है। यहाँ नई बात आई है, बिग डाटा क्या है। हमने नया नाम दिया, जब मिलियंस ऑफ डाटा हो जाते हैं, लाखों करोड़ों में डाटा चले जाते हैं, तो उसको हम बिग डाटा कहते हैं। और उन डाटा की एक अलग ब्रांच बना दी, उसको हम कहते हैं बिग डाटा। तो बिग डाटा, अब बिग डाटा को हैंडल करने के लिए पहले हम मशीन को सिखाते हैं कुछ कि आप ये डाटा लो, ये डाटा यूज करो, इसलिए मशीन लर्निंग की जरूरत है। ये बात इसका मतलब। अगेन go into more detail, overview what we have discussed so far. Data science and data in the society. सोसाइटी में डाटा कैसे यूज होता है और डाटा साइंस क्या है, जैसे इसके क्या रोल्स हैं, क्या इम्पैक्ट है, डाटा मॉडल्स क्या होते हैं। हम हमारी नीड से डाटा मॉडल, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी के लिए हम जो मॉडल बनाते हैं वो है एजुकेशनल मॉडल। एडमिनिस्ट्रेशन जैसे है, ब्यूरोक्रेसी के लिए बनाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल। डिफरेंट मॉडल्स आर नीडेड, देयरफॉर वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ द डाटा साइंस प्रोग्रामिंग, डाटा साइंस टूल्स। फिर इस तरह से क्या है कि ये सारी जो एप्लीकेशन है, फिर हम डाटा टाइप्स एंड स्टोरेज, किस तरह के डाटा टाइप होते हैं, उसकी क्या कैरेक्टराइज देंगे, बिग डाटा कैसे हम हैंडल करते हैं, डाटा सोर्सेज कहाँ से डाटा आता है, हाउ वी कैन स्टडी, उसकी क्या रिसोर्सेज है, क्या प्रोसेस है, क्या स्टैंडर्ड है, डाटा के स्टैंडर्ड है। ये डाटा आप यूज कर सकते हैं, ये नहीं यूज कर सकते, और उसको यूज करने के टूल्स होते हैं। टूल समझे, जैसे डाटा यूज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल वही है जो कि जैसे हमारा एक तरह से मशीन लर्निंग एक टूल है, कैसे हम उसको यूज करते हैं। सो इट मीन्स दैट आप इधर देखिए, डाटा साइंस मीन्स फर्स्ट टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री एंड देन अंडरस्टैंड। अब डाटा साइंस में किसी पर्टिकुलर ब्रांच में जाना चाहते हैं, पहले समझिए कि उस ब्रांच की हिस्ट्री क्या है। जैसे आप यूनिवर्सिटी में डाटा कैसे यूज करेंगे, तो यूनिवर्सिटी कैसे बनी, यूनिवर्सिटी की क्या हिस्ट्री है, यूनिवर्सिटी में क्या किया जाता है, उसके क्या एग्जाम्पल्स हैं, तभी आप यूजफुल डाटा यूनिवर्सिटी के लिए बना पाएंगे। Where does data come from and how to do data science, who are the data scientists, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए भी समझना पड़ेगा। Then you can develop that particular kind of the application. Finally, we understand here, data analysis हम इसलिए करते हैं because data sciences and data in society की जरूरत हमको पड़ती है। डाटा मॉडल्स हमको ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत पड़ती है। डाटा डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा और उसकी स्टोरेज हमको जरूरत पड़ती है। इस तरह डाटा रिसोर्सेज और उसके प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। इससे क्या है कि हम इसलिए डाटा को एनालिसिस करने में। अब आप समझे व्हाट इज एनालिसिस। एनालिसिस इज द प्रोसेस to filter out the data, to join the particular kind of the data according to our needs. Okay? So this is called the data analysis. Now, these are the scientists, they work in the data analysis. You can find a copy of this presentation later on. And these are the people, they really first time ever thought that what is the data science. Now, why all the excitement? Because we have different type of application. I already mentioned you about, for example, आपने कोविड देखा ही है, कोविड-19। Yes, sir. अब कोविड-19 में अब इस रीजन में कितना फैला है, क्या फैला है। इसी तरह मैक्सिको में एक बार फ्लू फैला था। How we could find this Mexican flu? So there are millions of people are there. How we diagnose it? We use the data. There are many other examples. Google flu trends you can find in Google, detecting outbreaks, and you can create new models. Now COVID-19 also, many countries created their models.
then which particular kind of the region is more intense in COVID and which particular kind of regions was less intense. बहुत सी कंपनियों ने पता लगाया है कि कोविड के दौरान कैसी जनसंख्या थी या कैसे पीपल थे, यानी उनके जो खान पान और खाने पीने की जो तरीका था उस वहाँ कोविड हुआ है अथवा नहीं हुआ, ये सारे उन्होंने मॉडल बनाए इसको देख। Now you know in India using vast application of the data in the election. समझे इलेक्शन के अंदर इसका कितना उपयोग इंडिया में आज हो रहा है डाटा साइंस का, आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। जैसे मैं तो कोई पॉलिटिकल आदमी तो हूँ नहीं, लेकिन डाटा साइंस ही कहती है कि अगर आपने दो कैंडिडेट को सामने तो आपने देखा कि उस कैंडिडेट को वोट देने वाले कौन हैं, कितने लोग हैं, किस रीजन में रहते हैं, तो आपने उसको हराने के लिए एक पैरेलल एक आदमी और खड़ा कर दिया या ऐसे रिसोर्सेज खड़े कर दिए जो उसके लिए फेवरेबल नहीं थे ना। लेकिन एनालिसिस तब होता है जब एक छोटे से टाउन में तो पॉसिबल है, पर इतनी बड़ी कंट्री में जहाँ 130 मतलब इतने लोग हैं मिलियंस, और वो उस कंट्री के अंदर इतनी कास्ट है हमारी और पॉलिटिकल जो सिस्टम बना हुआ है उसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, ये आजकल यूज हो रहा है और अब तो पूरी दुनिया में भी यूज हो रहा है। नाउ यू नो दैट, आपको मालूम है ओबामा कैसे जीते थे यूएस में, ये बहुत बड़ी इलेक्शन उनकी हिस्ट्री थी और उन्होंने कहा था, ये न्यूज भेजी है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की है, November 7, 2012, allowed the Obama campaign not only to alter the very nature of the electorate, making it younger and less white, but also create a portrait of shifting vote allocation। यूएस में व्हाइट और आप जानते हैं ब्लैक का मामला है, तो उन्होंने कहा किस तरह से आप कैंपेन शिफ्ट कीजिए, और यही नहीं आप किस तरह से जो है वो पावर ऑफ दिस ऑपरेशन स्पेंड बाई एक इसके जो इंचार्ज थे मिस्टर रोमिस जो उसके हेड थे इलेक्शन नाइट में, उन्होंने सारा सिनारियो इसे बदल दिया। ये भी एक डाटा साइंस का ही पार्ट था, किस तरह से आप डाटा को हैंडल करें। The White House names Dr. D.J. Patel as the first US chief data scientist in February 18, 2015. Why we talking US? Because US is the first country who implemented data scientist strategy over the national level as a federal level। जैसे हमारे दिल्ली में कोई प्रधानमंत्रियों में साथ में अपॉइंट होता है तो डाटा साइंटिस्ट मिलता है, तो नेशनल लेवल पर उन्होंने सबसे पहले अमेरिका ने इसको अपॉइंट किया था जो इंडियन ओरिजिन का था, डॉक्टर डीजे पाटिल। नाउ अनदर थिंग, आपने वेब यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, और इंटरनेट में कितनी इंफॉर्मेशन है। मैं आपको एक बात बताऊं छोटी सी, आपने एक वर्ड डाला, एक वर्ड डाला सिंपल, जैसे कोई आप सब बताइए कोई एक, तो वो वर्ड क्या है, जैसे मैथमेटिक्स है, इट गोज टू, अब इतना मैथमेटिक्स वर्ड इज बिलियंस ऑफ टाइम्स यूज्ड बाय द बिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द ग्लोब। पूरी दुनिया में अरबों लोगों ने अरबों टाइम्स इस वर्ड को देखा है और डाला है, कंप्यूटर पे तो सारा है। अब आपके लिए किसका आएगा, आपको देखिए, आपको देखिए मैथमेटिक्स, ओके आप तो फाइंड मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो उसके ट्रांसलेटेड है, ये जरूर है। लेकिन अगर आपको इंफॉर्मेशन मालूम है, जैसे मान लीजिए आप डालेंगे कॉलेज बिहेवियर, अब कॉलेज बिहेवियर भी एक ऐसा वर्ड है जो उसको आइडेंटिफाई डिफरेंट नेशन उसको डिफरेंट तरह से नाम डालते हैं, तो वो भी डिफरेंट ग्रुप में आ जाएगा। लेकिन पहला कौन आएगा दूसरा कौन आएगा ये आप नहीं जानते हैं। इसको बताने के लिए एक बात और बता, मान लीजिए आपके बाहर कोई शॉप है और शॉप के अंदर उसका नाम है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर नाम है, जैसे एवरीडे शॉप, और एवरीडे शॉप ये कोई चीज बेच रहा है, जैसे मान लीजिए आपका एक रजिस्टर बेच रहा है, आपने डाला रजिस्टर एवरीडे शॉप, ठीक है, क्योंकि एवरीडे शॉप डाला आपने तो वो एवरीडे का आना ही आना, लेकिन जरूरी नहीं एवरीडे का है। गूगल में होता है कि आप उसी चीज को मिलते हैं तो आप डबल इन्वर्टेड मार्जिन डालना पड़ता है। लेकिन अगर आप ये डालेंगे रजिस्टर यूज फॉर एवरीडे लाइफ, रजिस्टर यूज फॉर एवरीडे लाइफ, तो अब उसमें किसका पहले आएगा। दुनिया में इतनी दुकानें हैं, इतना वर्ड इतने टाइम्स यूज कर रहे हैं, कितना पहले आएगा।
इसके लिए गूगल से उनकी बिडिंग होती है, ठीक है, कि कौन ज़्यादा पैसा दे रहा है, आपको मोटे तौर पर ये है ना। तो ये डाटा का क्या है कि एक्सट्रैक्शन इकोनॉमिकल बेस पर हो रहा है, जोग्राफिकल लेवल पर भी होता है, किस जोग्राफी में आप रहते हैं वो सारा पहले से डिसाइड होता है।